Okay. Am I audible? आवाज आ रहा है सभी को? Yeah. Okay. Sorry, I lost any light actually. I have connected with mobile network. डाउट आएगा मुझे पूछिए फिर. Okay. क्या डिस्कस किया था लास्ट हमने? What we did? लास्ट क्या डिस्कस किया था? बोलो. हाँ, ऋषि क्या किया था बेटा लास्ट टॉपिक? So 1 second. How was your paper, all of you? Sir, it was good. हाँ. Yes, क्या किया था बोलो शुभम? क्लास क्या डिस्कस Sir, किया? we discussed electric field. Electric field that was completed, na? Yeah. Okay, so we have done with the two concepts, that is electric force and electric field, right? I'll just summarize this, whatever we have discussed in the previous lecture. So let me have this a charge of +1 q1 coulomb and the other charge is of +q2 coulomb, and they are separated by some distance, let's say r. So this +q1 coulomb charge will apply what kind of force on this +q2 coulomb? Repulsive force or attractive force? Repulsive. So this will be force of 2 due to 1, force on the second charge due to the first charge, repulsive force. And this q2 coulomb will apply what kind of force beta on q1? Will it apply again the repulsive force here? Because both are plus, na? So force of on 1 due to 2. As we have discussed in the previous lecture, that the amount of force which is being exerted by first charge on the second charge is equal to the amount of force which is exerted by second charge on the first charge. So these two forces, force on 1 due to 2 and force on 2 due to 1, these two forces are equal in magnitude, but they have different directions. As you can see, the forces are equal in magnitude and their directions are different. So this is in this direction and this force is in this direction. So they are in opposite direction, but the magnitude of these two forces will be same. Is it clear? And I hope you remember that this force was equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 by r square. This epsilon naught is called permittivity of free earth space, and epsilon naught is equal to what? 8.85 into 10 raised to power minus 12. And as we have discussed, 1 by 4 pi epsilon naught, this is equal to 9 into 10 raised to power 9. The value of this 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to power 9. Yes or no? Yes. Okay, we have discussed up to this much. And then I guess we have done with the question related with the forces, vector summation of the forces. वो complete किया था ना हमने? ट्रायंगल के सभी कॉर्नर्स पे we have a charge and we want to get the repulsion force, कितना लगेगा, कितना attraction का force होगा. Okay, great. Now today we'll discuss, do you know the concept of conservative and non-conservative force? शुभम किया है हमने एक concept, conservative or non-conservative? Sir. Now today we'll discuss the concept of electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. Okay. Now you tell me one thing, beta. Electrostatic force, is it a conservative force ki non-conservative force? किस टाइप का फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये किस टाइप का फोर्स है? इज इट अ कंजर्वेटिव फोर्स कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? हाँ नाइसा, कैसा फोर्स है बेटा? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव. सो इफ इट इज द सो पहला जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या इसकी वजह से जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करेगा कि पाथ से इंडिपेंडेंट होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी वजह से जो वर्क डन होगा, विल दिस वर्क डन बी डिपेंडेंट ऑन पाथ कि इंडिपेंडेंट ऑन पाथ?
हाँ शुभम, कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? ऋषि क्या होता है बेटा, डिपेंड करता है पाथ पे कि नहीं डिपेंड करता? सब भूल गया तुम लोग। सी, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आपका ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एंड इफ यू हैव Sir, टू it गो, is independent of the path. यस करेक्ट, अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो और आप किसी भी पाथ से जा रहे हो, आइदर यू आर गोइंग इन दिस वे और यू आर गोइंग विद दिस पाथ और यू आर गोइंग विद दिस पाथ, सो आप किसी भी पाथ से ए पॉइंट से मूव करके पॉइंट बी पे जाइए। अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव, सो इस केस में जो वर्क डन होगा एंड इस केस में जो वर्क डन होगा और इस केस में जो वर्क डन होगा, तीनों ही केस में जो वर्क डन होगा that will be equal, that will what remain same. So conservative force are those forces for which work done is path independent. अगर आप A point से move करके B point पे जा रहे हो and if there is conservative force acting here, so either you go by this path or you go by this path or you go by this path, the work done in all the three paths will be same. Here also the same work done, यहाँ भी same work done और यहाँ भी same work done, है ना? So conservative force का सिंपल सा मतलब है कि work done is independent of path. अब मुझे एक बात बताइए, पोटेंशियल एनर्जी जो हम डिफाइन करते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप के फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है? इज इट डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन करते हैं? डू वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? यस, किसके लिए डिफाइन करेंगे? ऋषि किसके लिए करते हैं बेटा डिफाइन? सब भूल गया तुम लोग। पोटेंशियल एनर्जी शुभम किसके लिए डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। रिवीजन नहीं किया कि इतने दिनों में? अच्छा हाँ, एक और बात, मैं हर चैप्टर का थ्योरी बेस्ड नोट्स अप टू जे नीट लेवल में ग्रुप क्लासरूम पे अपलोड करूंगा। एक चैप्टर मैंने किया है एंड दैट इज ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन में। हर चैप्टर का जितना भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं ना, मैं सभी चैप्टर का नोट्स थ्योरी बेस्ड अप टू नीट लेवल रिवाइज अपलोड करूंगा क्लासरूम के ऊपर। यू टेक दैट प्रिंट आउट और अपने पास रखिए और कंटिन्यूअसली पढ़िए, कुछ डाउट आएगा मुझे पूछना, राइट? सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसा कोई टर्म डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? कैन वी डिफाइन हियर? Yes. यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या था? व्हाट वाज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या था? Was it equal to the negative of work done by conservative force or positive work done by external force? है ना? याद है कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ये जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखा WBC, व्हाट डज इट मीन? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। ये टर्म क्या है? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। यस और नो बेटा? सो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और इट कैन बी आल्सो डिफाइंड एज पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एम आई क्लियर? याद है कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क डन करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। So if conservative force is doing positive work done, so potential energy will decrease. If it is doing negative work done, then potential energy will increase. Is it fine? Is it fine? Clear a point यहाँ तक? Yes or no? इशिता, नाइसा, क्लियर बेटा यहाँ तक पॉइंट? ओके। अब मुझे एक बात बताइए, सोच के, पेपर कैसा गया बेटा तुम लोगों का? विषय कैसा था पेपर फिजिक्स का? अच्छा था। इजी था, टफ गया?
इजी था। ओके, एंड इशिता तुम्हारा बेटा पेपर? So it was nice. हाँ, So it was nice. ओके। नाउ सी वन थिंग, मान लो आपने एक चार्ज को यहाँ रख दिया प्लस Q1 कूलम को, और ये चार्ज मेरा फिक्स्ड है, ये फिक्स चार्ज है, और दूसरा चार्ज को मैं प्लस Q2 कूलम को कहीं से लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। सो जब आप ये Q2 कूलम को यहाँ से मूव करके यहाँ लेकर आ रहे हो, मान लो आप यहाँ से फ्रॉम डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज व्हाट, लेट मी से R1, और ये चार्ज को मूव करके यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, सच दैट इसका डिस्टेंस R2 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं Q2 चार्ज को R1 डिस्टेंस से मूव करके R2 डिस्टेंस पे लेकर आ जाओ इस वाले पॉइंट पे, सो कंजर्वेटिव फोर्स इस केस में कैसा वर्क डन कर रहा है? पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है कि नेगेटिव वर्क डन कर रहा है? सी, मैं ये चार्ज पार्टिकल को प्लस Q2 कूलम के चार्ज को आई एम मूविंग इट फ्रॉम R1 एंड आई एम मूव्ड इट टू R2, सो आई एम मूविंग इट फ्रॉम हियर टू हियर। इफ दिस चार्ज इज बीइंग मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स? इज इट डूइंग द पॉजिटिव वर्क कि नेगेटिव वर्क? कैसा वर्क डन कर रहा है? सी, मुझे एक बात बताओ, ये जो प्लस Q1 कूलम का चार्ज है, क्या इस पे रिपल्सन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, सो ये वाला प्लस चार्ज और ये वाले प्लस चार्ज पे क्या लगा रहे हैं? रिपल्सन का फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। सो रिपल्सिव फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस चार्ज इज बीइंग डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन। सो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब मुझे बताओ बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इस केस में जब मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करके जा रहा हूँ, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 180 डिग्री। सो अगर मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, सो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है? इज इट 180 डिग्री एंगल बीइंग फॉर्म्ड हियर? अब अगर ये एंगल 180 डिग्री का फॉर्म कर रहा है, इस केस में वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बाय कंजर्वेटिव फोर्स? Negative. So can we say that if charge plus Q2 coulomb is moved from R1 to R2, if this charge is moved from R1 to R2, work done by conservative force is नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से नेगेटिव है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? Increase. हाँ, increase. Why? Because we know that potential energy is negative of work done by conservative force. Now, if this work done by conservative force is negative, so negative negative मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या इस केस में potential energy will increase करेगा? सो अगर आप ये प्लस Q2 कूलम के चार्ज को यहाँ से मूव करके यहाँ लेकर आ जाओ, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम दिस R1 टू हियर, सो अगर मैं ये चार्ज को प्लस Q2 कूलम के चार्ज को यहाँ से इधर मूव करके लेके जा रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स इस केस में नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स इस केस में नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, इसका मतलब कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? विल दिस इंक्रीज? क्या इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा बेटा? ओके, ये आपका केस 1 हो गया। सो आप ध्यान से समझना, अगर आप प्लस Q1 प्लस चार्ज के सामने अगर आप प्लस चार्ज को ही मूव करा के लेकर आ जाओ, सो उस केस में जब आप प्लस चार्ज को मूव कर रहे हो, इस केस में जो कंजर्वेटिव फोर्स है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इज डूइंग नेगेटिव वर्क डन, और अगर ये नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, इसका मतलब कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यस और नो? यस और नो? इंक्रीज करेगा। अब देखिए इसका दूसरा केस देखिए, अपना केस 2। इफ Q2 कूलम, मान लो फिर से अगेन यू आर हैविंग Q1 कूलम हियर, और यहाँ पे आपके पास एक दूसरा चार्ज है माइनस Q1 कूलम। सो यहाँ पे आपके पास प्लस Q2 कूलम का चार्ज है एंड हियर वी आर हैविंग व्हाट? माइनस Q1 कूलम। अब मैं इस चार्ज को R1 डिस्टेंस से मूव करके R2 डिस्टेंस पे लेकर जा रहे हैं,
बताओ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? Decrease. What will happen in this case? Will it increase to decrease? Decrease. Decrease. Very good. सब लोग एनालाइज करो. One second, बेटा. अब देखो एक बात, if in this case अगर आप एनालाइज करो, I just got the अब मुझे एक बात आप सोच के बताइए, जस्ट थिंक ऑन इट, अच्छे से सोचना ये बात. यहाँ पे मेरे पास चार्ज था प्लस Q1 कूलम का और यहाँ पे मेरे पास चार्ज था माइनस Q2 कूलम का. ये मेरा चार्ज प्लस और ये मेरा चार्ज माइनस. अब ये जो प्लस चार्ज है वो इस माइनस चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा कि रिपल्शन का फोर्स लगाएगा? Attraction. अट्रैक्शन. वेरी गुड अंकिता. अब अगर ये अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे और ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, सो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन दैट वे एंड फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है. सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म करेगा इस केस में, व्हाट विल बी द एंगल हियर? विल इट बी 0 डिग्री की 180? 0. इस केस में वर्क डन क्या होगा, प्लस की माइनस? वर्क डन कैसा होगा? हाँ, वर्क डन is positive. If this work done is positive, so you tell me कि अगर मेरा ये work done positive है, so potential energy is negative of work done by conservative force. अब मुझे आप खुद सोच के बताइए कि अगर मेरा ये work done positive है, इस केस में potential energy increase करेगा कि decrease करेगा? Decrease. इस केस में क्या होगा? potential energy will decrease. समझ में आ गया? शुभम, गॉट द पॉइंट बेटा? समझा ये पॉइंट? Yes. ओके. दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. हमने ये पहले भी बात किया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. सो अगर कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क डन करेगा, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क डन करेगा, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. अब आप देखिए, समझना ये बात ध्यान से. मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, आपको कंफ्यूज होगा डेरिवेशन करने पे. मान लो ये चार्ज प्लस Q1 कूलम का है और दूसरा चार्ज प्लस Q2 कूलम का है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से r है. सो वी आर हैविंग अ चार्ज ऑफ प्लस Q1 कूलम एंड द अनदर चार्ज हियर इज ऑफ प्लस Q2 कूलम. और अगर मुझे इन दोनों चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, सो पोटेंशियल एनर्जी हियर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R. सिंपली. मैं इसका डेरिवेशन पे नहीं जाता, कंफ्यूज होगा आपको. बस इतना ही समझ कर रखो कि अगर मेरे पास चार्ज एक प्लस Q1 कूलम का है, दूसरा चार्ज प्लस Q2 कूलम का है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R. इस केस में इन दोनों चार्जेस के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R. है ना? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ point charges. Is it clear? समझ में आ रही है बेटा? समझा ये पॉइंट? हाँ सर. ओके. पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे आप पॉइंट चार्जेस का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R. अगर आप R स्क्वायर कर दोगे तो ये फोर्स हो जाता है, सिर्फ R रखोगे तो एनर्जी हो जाएगा. और हम इसके केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं. और क्यों डिफाइन कर सकते हैं हम इस केस में पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि ये कौन सा टाइप का फोर्स है? दिस इज अ conservative force, and since it is a conservative force, so therefore we can define potential energy in this case. So electrostatic potential energy is given by the formula 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R. And 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R स्क्वायर कर दोगे तो वो फोर्स हो जाएगा, सिर्फ R रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी. एग्रीड बेटा? समझा ये पॉइंट सभी को? ओके, ग्रेट. चलिए एक का क्वेश्चन करके बताओ मुझे सिंपल से.
मान लो कि आपके पास मैंने एक चार्ज दे दिया +2 कूलम का, दूसरा चार्ज दे दिया +4 कूलम का, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। आपसे पूछ रहा हूं मैं, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। करिए। सर इसका एप्लीकेशन क्या है? बहुत होगा बेटा, आगे चल के हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन जैसे करते थे ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, वैसे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी कंजर्वेशन करेंगे। जैसे याद है हमने क्वेश्चन किया था कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट 2। सेम वे में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ एक नया एनर्जी विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आया? तो ये भी एक बेसिकली एक टाइप का एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक नया एनर्जी है। समझ में आया अंकिता? इज इट क्लियर? यस। ओके, मुझे बताइए इस केस में एनर्जी कितना होगा इसमें स्टोर? विल इट बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 by what? r. So what will be potential energy here बेटा? 9 into 10 raised to power 9, 1/4 pi का epsilon naught का वैल्यू हो जाएगा, into 2 into 4 by 2 का स्क्वायर, that will be 4. So what will be potential energy here? 9 into 10 raised to power 9 into 2 into 4 by 4. Will this 4 and 4 get cancelled? So from here potential energy कितना हो जाएगा? 18 into 10 raised to power 9 joules. This will be the final answer. Is it clear? शुभम समझा बेटा कैलकुलेशन ये कैसे किया हमने पोटेंशियल एनर्जी? Yes. विषय इस एसिता इज नॉट देयर। नाइसा एंड निमय क्लियर है बेटा यहाँ तक पॉइंट? ओके, तुम्हारा कैसा था पेपर शुभम फिजिक्स का? शुभम, हाउ वाज योर एग्जाम फॉर फिजिक्स? Sir, it was easy. I got 19 out of 20. 90 what in physics sir? Overall science? No, in physics, 19 out of 20. 19 20, very good. हाँ तुम्हारा नाइसा बोलो। Sir, my paper was नाइसा, what was your score? Sir, I got 20 out of 20. Wow. So, but Excellent. can you go to the previous slide? Yeah. ऋषभ तुम्हारा कितना स्कोर है बेटा? हाउ मच यू गॉट? Sir, marks नहीं मिले. मार्क्स नहीं दिया। अंकिता तुम्हारा? मेरे भी मार्क्स मिले। ओके, हाँ क्या बोल रहे थे नाइसा बोलो। सर यहाँ पर हमने 2 स्क्वायर क्यों लिया? 2 ही होना चाहिए। ओह हाँ, यस यस यस, फोर्स का मेथड लिख दिया, बिल्कुल सही, 2 होगा। थैंक यू। सो 2 को अगर आप प्लेस कर दोगे बिल्कुल 2 होगा। सो इट विल बी 4 हियर, 2, सो दिस 2 and 2 will get 9 is 36. So 36 into 10 raised to power 9. Thank you. 2 का स्क्वायर नहीं होगा, that will be 2 only. And very good. क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूँ, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दिस। मान लो आप यहाँ पे चार्ज प्लेस कर रहे हो +1 कूलम का, +2 कूलम का, एंड देन वी हैव प्लेस्ड अ चार्ज अनदर ऑफ 1 कूलम। लेट्स से बेटा कि ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर है और ये डिस्टेंस भी आपका 2 मीटर है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of system of charges. Find electrostatic potential energy of system of charges. ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। देख इसको मैं करता हूँ, आपसे पहली बार में नहीं बनेगा, मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे इसको। मुझे एक बात बताओ, एक एक करके चार्ज को आप लेकर आओ। पहले ये तीनों में से पहले मैं फर्स्ट चार्ज को लेकर आता हूँ,
तो जब आप पहले चार्ज को लेकर आ रहे हो तो आपने वर्क डन कितना किया है? जब मैं फर्स्ट चार्ज को लेकर आ रहा हूं तो मैंने कितना वर्क डन किया है? व्हाट इज माय वर्क डन देन? इज इट 0? आप मुझे एक बात बताओ, जब आप पहली बार पहला चार्ज को लेकर आ रहे हो तो आपने कोई रिपल्सन के अगेंस्ट कोई वर्क डन किया? कुछ भी रिपल्सन है या अट्रैक्शन है पहले से? जब मैं पहला चार्ज लेकर आ रहा हूँ +1 कूलम का, so when I am bringing the first charge of +1 coulomb, is there any kind of repulsion or attraction here? नहीं ना, क्योंकि +1 कूलम के पहले तो कोई चार्ज अवेलेबल नहीं था। सो अगर +1 कूलम के पहले कोई चार्ज अवेलेबल नहीं था और आप पहला चार्ज लेकर आ रहे हो तो आपने कितना वर्क डन किया है टू ब्रिंग दैट +1 कूलम चार्ज? 0 वर्क डन। अब अगर तुमने 0 वर्क डन किया है पहला चार्ज को लेकर आने में, तो फर्स्ट जो आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो पहला पोटेंशियल एनर्जी होगा इसको लेकर आने में, विल दैट बी इक्वल टू 0? क्या वो 0 के बराबर होगा? गॉट द पॉइंट बेटा व्हाट आई सेड? मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं ना, +1 कूलम के चार्ज को लेकर आया इन्फिनिटी से और ले आकर यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो जब आप पहला 1 कूलम का +1 कूलम के चार्ज को लेकर आ रहे हो और आप प्लेस कर दे रहे हो, तो फर्स्ट +1 कूलम के चार्ज को लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा? क्या आपको 0 वर्क डन करना पड़ा फर्स्ट चार्ज को लेकर आने में? और अगर तुम्हें फर्स्ट चार्ज को लेकर आने में फर्स्ट +1 कूलम के चार्ज को लेकर आने में अगर 0 वर्क डन करना पड़ा, तो क्या इस केस में जो आपका पहला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा फर्स्ट केस में, विल दैट बी इक्वल टू 0? अंकिता हो गया बेटा पहला पोटेंशियल एनर्जी 0? क्योंकि समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तुम फर्स्ट चार्ज को लेकर आ रहे हो तो फर्स्ट चार्ज को लाने में आपने कोई वर्क डन नहीं किया है। तो सिंस फर्स्ट चार्ज को लाने में मैंने कोई वर्क डन नहीं किया है, देयरफॉर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं सेकेंड चार्ज को लेकर आ रहा हूं इन्फिनिटी से, तो जब आप सेकेंड चार्ज को लेकर आ रहे हो तो क्या आपको वर्क डन करना पड़ा है? शुभम, जब मैं सेकेंड चार्ज को लेकर आ रहा हूं तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ा? फर्स्ट चार्ज को लेकर आए तो उसके पहले कोई रिपल्सन नहीं था ना। तो जब आप पहला चार्ज को लेकर आए तो इसके पहले कोई रिपल्सन नहीं था। सो फॉर ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज डू यू हैव टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पहले तो कोई चार्ज था ही नहीं जो इसके ऊपर रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। तो जब आप फर्स्ट चार्ज को लेकर आ रहे थे तो आपने कोई वर्क डन नहीं किया है, तब मैंने कोई वर्क डन नहीं किया है। लेकिन जब मैं ये सेकेंड चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, व्हेन आई एम ब्रिंगिंग दिस सेकेंड चार्ज, सो एम आई डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क? Yes. Yes. Because there's a repulsion. Because of which charge? This now +1 coulomb charge. Yes. Okay, so of course the potential energy will be there only due to this. तो जब आप सेकेंड चार्ज को लेकर आ रहे थे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 × 1/2 ओनली ड्यू टू दिस चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ विषय, जब मैं ये थर्ड चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, व्हेन आई एम ब्रिंगिंग दिस थर्ड चार्ज, तो मैं जो वर्क डन कर रहा हूँ वो किसकी चार्ज की वजह से हो रहा है? क्या ये पहले वाले चार्ज और दूसरे वाले चार्ज, क्या दोनों चार्ज की वजह से मुझे वर्क डन करना पड़ा टू ब्रिंग थर्ड चार्ज? राइट। सो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 1/2 + 2 विच इज 4 प्लस ये तो इसकी वजह से हो गया प्लस इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 1/2। So when you are bringing the first charge, no work done. When we are bringing the second charge, there is a work done due to the first charge. When we are bringing third charge, there is a work done due to first and second charge both. ये मेरा एनर्जी हो गया। मुझे एक बात बताओ नाइशा, ये जो एनर्जीज है U1, U2 एंड U3, आर दे स्केलर क्वांटिटी एनर्जी की वेक्टर क्वांटिटी? एनर्जी कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर की वेक्टर? स्केलर। तो क्या मैं टोटल एनर्जी के लिए वी कैन सिंपली ऐड देम U1 + U2 + U3, आप सिंपली ऐड कर दो। सो फॉर टोटल एनर्जी इनिशियली U1 आपका 0 हो जाएगा क्योंकि पहले चार्ज को लेकर आने में आपने कोई वर्क डन नहीं किया है। अगर कोई वर्क डन नहीं किया तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स स्टोर नहीं होगा, तो ये तो 0 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो शुड बी सिंपली इक्वल टू व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 1 प्लस इसको लेकर आ रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 × प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 1। ये थर्ड केस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Sir, what is U1 here? What is U1 here? U1 is the amount of work done in bringing the first charge.
तो जब आप बेटा फर्स्ट चार्ज को लेकर आ रहे थे तो फर्स्ट चार्ज के पहले सिंस देयर वेर नो चार्ज टू अप्लाई रिपल्सन और द अट्रैक्शन फोर्स, तो क्या फर्स्ट चार्ज को मुझे इन्फिनिटी से लेकर आने में मैंने कोई वर्क डन नहीं किया है, एंड एज आई हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट, गॉट द पॉइंट? So this okay, great. So 1 by 4 pi epsilon naught यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ पे, so you take that out as a common. So 1 plus of 1 by 4 plus 1, 1 plus 1 by 4 plus 1. So potential energy total will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught. This will be 8 plus 1, 9 by 4. Implies कि आपका जो total potential energy होगा will that be equal to 1 by 4 pi epsilon naught, 9 by 4. 1 by 4 pi epsilon naught is what? 9 into 10 raised to power 9 into 9 by 4. 81 by 4 into 10 raised to power 9 joules. This will be the final answer. Is it clear? Yes, sir. Great. समझ में आया सबको ये पॉइंट? ऐसा समझा बेटा कैसे कैसे किया हमने, चार्ज को मूव किया कैसे? Now we have done this. It's a good question and this is asked in JEE mains and NEET. और ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. आपको क्या करना है, बस एक एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आओ. तो जब आप पहले वाले चार्ज को लेकर आ रहे हो कोई वर्क डन नहीं, दूसरे वाले चार्ज को लेकर आ रहे हो तो पहले वाले चार्ज की वजह से वर्क डन, जब आप तीसरे वाले चार्ज को लेकर आ रहे हो तो पहले और दूसरे दोनों वाले चार्ज की वजह से वर्क डन. तो सिंपली आपको सिर्फ क्या करना है, वर्क डन लिखते जाना है. इज इट क्लियर? Is it clear? समझ में आया पॉइंट ये? So here the nature of the charges won't affect the electrostatic. Yeah, it will affect. If it is negativeness, we'll have to take minus. If it is positive, then we are having plus. So अगर minus हो जाएगा तो 1 into minus 2 by 4 accordingly, जैसे हमने यहाँ पे एनालाइज किया था ना, सेम वे में. क्योंकि अगर आप नेगेटिव चार्ज होगा तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, सो देयरफॉर देयर विल बी अ माइनस साइन. सो अगर इंस्टेड ऑफ प्लस साइन चार्ज अगर यहाँ पे माइनस होता, सो यार इट वुड बी द माइनस. माइनस मुझे ऐड करना पड़ेगा. Is it clear बेटा? समझा ये पॉइंट? Yes, sir. Okay, great. चलो, I'll make a question here. Let me have this question like this. आपको मैं डाटा नहीं लेता हूँ, आपको बगैर डाटा के लिखना है. So let me say it is my equilateral triangle. Equilateral triangle, right? और यहाँ पे चार्ज प्लेस किया है प्लस क्यू का. Here we have placed a charge of plus q coulomb. डाटा नहीं ले रहा हूँ, सिंपली आपको क्यू के टर्म्स में बता देना. एंड 1 by 4 pi epsilon naught की जगह पे आप k यूज कर लेना. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड हैविंग साइड a. आपसे पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. करिए सॉल्व. एक ही करके बस आप वैसे ही चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आओ और देखो क्या वर्क डन करना पड़ रहा है. ब्रिंग इंडिविजुअल चार्जेस and place the numbering also.
ओके, कैसे करेंगे इसको अभी सॉल्व? आया ना इसे सॉल्व होके बेटा? अब मुझे एक बात बताइए, जब आप पहले वाले चार्ज को लेकर आओगे, फर्स्ट चार्ज को लेकर आओगे इन्फिनिटी से, तो वर्क डन कितना होगा टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज? जब हम फर्स्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, तो फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आने में कितना वर्क डन होगा? शुभम, एम आई ऑडिबल? हाँ, कितना वर्क डन होगा टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज? इसके पहले कोई भी चार्ज नहीं है, तो ना रिपल्सन लगेगा ना अट्रैक्शन लगेगा। सो अगर आप फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आओगे तो कितना वर्क डन होगा? 0 0। यस, सुपर, 0 जूल। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं सेकेंड चार्ज को लेकर आ रहा हूँ इन्फिनिटी से, तो वर्क डन हो रहा है क्या? व्हेन आई एम ब्रिंगिंग द सेकेंड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, तो जब मैं सेकेंड चार्ज को लेकर आ रहा हूँ तो क्या वर्क डन हो रहा है? शायद किया। अभी एक देखो, जब आप फर्स्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से, तो फर्स्ट चार्ज को लेकर आने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा? इज इट इक्वल टू 0? अब मुझे एक बात बताना है, जब मैं सेकेंड चार्ज को लेकर आ रहा हूँ बेटा इन्फिनिटी से, तो वर्क डन करना पड़ रहा है क्या? सेकेंड चार्ज को जब हम लेकर आ रहे हैं तो वर्क डन करना पड़ रहा है? Yes, sir. ओनली ड्यू टू व्हाट? फर्स्ट चार्ज ना। कितना वर्क डन करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q by a। सो कितना वर्क डन रहेगा? विल इट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a। तो क्या मैं जब थर्ड चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, सॉरी सेकेंड चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, तो फर्स्ट चार्ज की वजह से ही वर्क डन हो रहा है। कितना हो जाएगा? k into q स्क्वायर बाई a। विल इट बी द वर्क डन when we are bringing the second charge then? करेक्ट। सो जब आप फर्स्ट चार्ज को लेकर आओगे तो कोई वर्क डन नहीं, सो नो पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन आई एम ब्रिंगिंग द सेकेंड चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज की वजह से वर्क डन होगा एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस। शुभम, अंकिता, क्लियर है बेटा ये फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड चार्ज? Yes, sir. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं थर्ड चार्ज को लेकर आता हूँ तो किसकी वजह से वर्क डन होगा? व्हेन आई एम ब्रिंगिंग द थर्ड चार्ज, तो किसकी वजह से वर्क डन होगा? क्या फर्स्ट चार्ज और सेकेंड चार्ज, क्या दोनों की वजह से वर्क डन होगा? So will it be equal to 1/4 pi epsilon naught q into q by a from here and plus 1/4 pi epsilon naught q into q by a, due to क्योंकि इससे भी डिस्टेंस a है और इससे भी डिस्टेंस a है। सो पोटेंशियल एनर्जी 3 कितना हो जाएगा? Will it be equal to 1/4 pi epsilon naught q square by a plus 1/4 pi epsilon naught q square by a? So can we write this as u3 k q square by a plus k q square by a? So it will be equal to 2k q square by a। हो गया सर? सुबह। सो जब आप फर्स्ट चार्ज को लेकर आ गए, नो वर्क डन, सो नो पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं सेकंड चार्ज को लेकर आ गया तो फर्स्ट चार्ज की वजह से वर्क डन, सो ओनली पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस। व्हेन आई एम ब्रिंगिंग द थर्ड चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज दोनों की वजह से वर्क डन, सो देयरफॉर दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। एंड एज वी नो that potential energy is a scalar quantity, तो टोटली हम क्या करेंगे? u1 plus u2 plus u3। सो पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा? 0 plus k q square by a plus 2k q square by a। सो implies कि आपका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा will it be equal to what? 3k q square by a। यही होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, 3k q square by a। नाइस सर, निमय? Yes, sir. ओके, विषय समझा बेटा आपको? सबको क्लियर ये पॉइंट एवरीवन? सो जब आप फर्स्ट चार्ज को लेकर आए, मैं एक बार फिर रिपीट करती है, बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है मुझे मालूम है, और आपके लिए तो और भी होगा, कॉन्सेंट्रेट करके सुनो। जब आप फर्स्ट चार्ज को लेकर आए तो कोई वर्क डन नहीं, सो नो पोटेंशियल एनर्जी।
जब मैं सेकंड को लेकर आया तो फर्स्ट की वजह से वर्क डन, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं थर्ड को लेकर आया तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की वजह से वर्क डन, सो दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। नाउ सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर आप क्या करोगे, सबको सिंपली यू ऐड देम। इज इट क्लियर बेटा? शुभम समझा है कैलकुलेशन? Yes. ओके, एक और करके बता दो फिर आगे पढ़ते हैं, एक आधा और करा देते हो फिर आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ दैट वी आर हैविंग अ स्क्वायर हियर, सो वी आर हैविंग अ स्क्वायर हियर। यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू कूलम का, प्लस क्यू कूलम का, प्लस क्यू कूलम का। Here also we are having plus q coulomb का, and the side is a, है ना? तो चारों एंड्स पे चार्ज रख दिया प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और स्क्वायर का साइड क्या है a। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करिए। फाइंड आउट दिस। एक एक चार्ज को ब्रिंग करो, लेट मी नेम देम 1 2 3 4, चारों पॉइंट्स का नाम दे दिया 1 2 3। सो सभी चार्ज को आप 1 by 1 ब्रिंग करो इन्फिनिटी से, एंड देन फाइंड आउट कि व्हाट इज द एनर्जी। चलो एक एक करके करें। अंकिता बोलो बेटा, जब आप फर्स्ट चार्ज को लेकर आ रहे हो, ये वाले चार्ज को लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से, इसके पहले कोई भी चार्ज नहीं है, तो जब आप फर्स्ट चार्ज को लेकर आ रहे हो तो कितना वर्क डन हो रहा है? 0. 0। ओके, जब मैं सेकेंड चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, व्हेन आई एम ब्रिंगिंग द सेकेंड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, तो वर्क डन हो रहा है क्या? जब हम सेकेंड चार्ज किसकी वजह से वर्क डन हो रहा है? First charge. फर्स्ट। कितना हो जाएगा? 1 by 4 pi epsilon naught q into q by a, which is 1 by 4 pi epsilon naught q square by a. So u2 कितना हो जाएगा अगर मैं 1 by 4 की जगह पे k प्लेस कर दूं? So that be k q square। सेकेंड का काम खत्म। तो जब आप फर्स्ट को लेकर आए तो कोई वर्क डन नहीं, सेकेंड को लेकर आए तो फर्स्ट की वजह से वर्क डन। नाउ व्हेन वी आर ब्रिंगिंग दिस थर्ड चार्ज, जब मैं ये थर्ड चार्ज को लेकर आता हूँ, so, जब मैं थर्ड चार्ज को लेकर आ रहा हूँ तो क्या वर्क डन हो रहा है? किसकी वजह से? सेकेंड चार्ज की वजह से भी और फर्स्ट चार्ज की वजह से भी। अब हाँ, सेकेंड की वजह से कितना वर्क डन हो जाएगा बेटा? विल इट बी 1 by 4 pi epsilon naught q into q by a because of this second। अच्छा, अगर आप फर्स्ट चार्ज के लिए देखो तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? अगर ये आपका ए हो गया और ये भी आपका ए हो गया, √2 है, सुपर। तो कितना हो जाएगा प्लस इसकी वजह से 1 by 4 pi epsilon naught q into q by what? √2a। So u3 कितना हो जाएगा? k q square by a plus k q square by √2a। Now u3 if you have to calculate, आप k q square by a को कॉमन ले लो, 1 plus of 1 by √2। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी u3 हो जाएगी? सो जब आप फर्स्ट को लेकर आए तो कोई वर्क डन नहीं, दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड को लेकर आया तो फर्स्ट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड को लेकर आया तो सेकंड और फर्स्ट दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यू ब्रिंग दिस फोर्थ चार्ज। अभी आप ये फोर्थ चार्ज को लेकर आइए, सो आई राइट इन द नेक्स्ट पेज। सो अगर मैं फोर्थ चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, बताइए क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा? फोर्थ को लेकर आओगे तो, फोर्थ को लेकर आओगे तो ये फर्स्ट की वजह से होगा, राइट? कितना हो जाएगा फर्स्ट की वजह से? 1 by 4 pi epsilon naught q into q by a। तो जब हम फोर्थ को लेकर आ रहे हैं
तो फर्स्ट की वजह से 1/4πε0 q into q by a, फोर्थ को लेकर आ रहे हैं थर्ड की वजह से, कितना, दिस विल बी अगेन इक्वल टू व्हाट, 1/4πε0 q into q by a प्लस ये दोनों का काम खत्म। अब अगर आप इसकी वजह से देखोगे, नाउ दिस इज a, दिस इज a, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a, इसकी वजह से कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 1/4πε0 q into q by √2a, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करें, सो व्हाट विल बी योर एनर्जी, 1/4πε0 q square by a plus 1/4πε0 q square by a plus 1/4πε0 q square by √2a. So if I'll be having this as common, u4, so q square by 4πε0 a, 1 plus 1 is 2 plus 1 by of √2, राइट। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, 4 को लेकर आया तो इसकी वजह से एंड देन बिकॉज ऑफ दिस, सो दिस इज माय होल पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, सो व्हाट विल बी योर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3 and due to 4, because potential energy is a scalar quantity, therefore we'll add them simply, हम लोग इसको आराम से ऐड कर देंगे। सो इनिशियली तो आपका 0 था u1, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 प्लस u2 कितना हो गया, k q स्क्वायर बाय a प्लस ये कितना हो जाएगा, k q स्क्वायर a ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय √2 प्लस k q स्क्वायर बाय a 2 plus of 1 by √2. Will this be the case? So once can you go to the previous slide? Yeah. सुमन, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? Yes. Okay. Right. हाँ, फाइनली ऐड कर दो, just we have to add them. So k q square by a सब जगह पे कॉमन है, so if I am having that as a common here, so potential energy total कितना हो जाएगा, k q square by a this is 1 plus 1 2 and 2 plus 2 कितना हो जाएगा, 4, 1 by √2 1 by √2 plus 1 by 1 1 2 and 2 4, so potential energy total कितना हो जाएगा, k q square by a 4 plus 2 by √2, this is get cancelled, √2 आ गया, so potential energy total will be equal to k q square by a 4 plus of √2. इसी तरह नाइसा समझा बेटा आपको, एंड अंकिता, both of you, is it clear the calculation? Yes, sir. Great. निश्चय समझा बेटा आपको कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज की वजह से? हाँ सर। निमय, समझ में आया कैलकुलेशन कैसे किया? ओके, अच्छा अब देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो। हम डिस्कस करेंगे अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मुझे बताइए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड? शुभम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? वाज इट इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? वाज इट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज? याद है? कुछ डिस्कस किया था हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स में चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इज 1/4πε0 q1 × q2 by r स्क्वायर, और उसमें अगर आप q से डिवाइड कर दोगे तो आपको फील्ड मिल जाता है 1/4πε0 q by r स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज। एग्जैक्टली सेम वे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
it is defined as electric potential energy, electric potential energy by charge. What the point बेटा? जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज, एग्जैक्टली सेम वे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज. Am I clear? So इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं V से, so पोटेंशियल एनर्जी को U से बाय चार्ज. So this is the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए बात करें, सो मान लो बेटा आपका चार्ज यहाँ पे प्लस Q1 कूलम का एंड द सेकंड चार्ज हियर इज ऑफ प्लस Q2 कूलम. इन दोनों के डिस्टेंस अगर आप r पकड़ ले तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीस टू चार्जेस? इज इट इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R? क्या यही पोटेंशियल एनर्जी होता है इन दोनों चार्जेस के बीच में? यही पोटेंशियल एनर्जी होता है इन दोनों चार्ज के बीच में. आपके पास अगर एक चार्ज है प्लस Q1 कूलम का, द सेकंड चार्ज वी आर हैविंग हियर इज ऑफ प्लस Q2 कूलम. सो ये प्लस Q1 कूलम और प्लस Q2 कूलम के बीच में क्या जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, विल दिस बी इक्वल टू दिस 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R? सो हम यही होता है कि पोटेंशियल एनर्जी. अब देखिए पोटेंशियल क्या होता है. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बाय, ये आपका टेस्ट सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, बाय टेस्ट चार्ज. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R divided by what? Q2. ये Q2 क्या हो जाएगा? कैंसिल. सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 by R. खत्म. नाइसा समझा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज सेम जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, डिट्टो सेम वे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है. बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज. एग्जैक्टली सेम वे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज. Am I clear? So V is volt, right? Yeah, it is electric potential volt. इसका यूनिट होता है वोल्ट. मैं बताता हूँ. यहाँ तक समझ में आया नाइसा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज, एग्जैक्टली सेम वे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एज यू नो 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में आप टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो Q2 से, सो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा. वेरी सिंपल, 1/4 pi epsilon naught Q1 by R. Am I clear? Yes. वेरी गुड. अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल ना. चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम. आपको ऑलरेडी बताया मैंने. सो पोटेंशियल का यूनिट कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जूल पर कूलम. एंड वी नो, हमें पता है, अगर नहीं मालूम तो आप नोट कर लीजिए, दैट 1 जूल पर कूलम इज नथिंग बट 1 वोल्ट, ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट वोल्ट. इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक यूनिट वोल्ट भी है. आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू IR में वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, है ना. सो इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट.
समझ में आया शुभम? विषय समझा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है? Yes. ओके, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस आप पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज से डिवाइड कर दो। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज से डिवाइड कर दोगे सो विल बी हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट्स इट। जस्ट डिवाइड चार्ज फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। रिसर्च समझा बेटा आपको ये पॉइंट? इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके, एक क्वेश्चन सर मुझे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस एक ही चार्ज का फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ, मतलब एक ही चार्ज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं ना? एक ही चार्ज की वजह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप लिख रहे हो ना, जैसे देखो, मान लो अगर आपके पास चार्ज Q1 है एंड वी वांट टू गेट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विच इज एट द डिस्टेंस r फ्रॉम हियर। इस पॉइंट पे मान लो मुझे पोटेंशियल चाहिए, पॉइंट नंबर P पे। तो इस चार्ज की वजह से अगर आप पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालोगे, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r। बस, है ना? सो अगर आपके पास चार्ज Q1 कूलम का है प्लस Q1 कूलम का है, और इस चार्ज की वजह से इफ वी वांट टू गेट द पोटेंशियल हियर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस चार्ज, so the potential here will be simply equal to 1/4 pi epsilon naught Q1/r. This will be the potential at point P. Is it clear? है ना? अब बस यहाँ पे आपको जो चार्ज भी रखना है उस चार्ज को रख के उस चार्ज से पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। समझ में आया ना ये सब पॉइंट? ये सिंपली आपको क्या करना है, आपके पास कोई चार्ज है Q कूलम का और वहां से आप r डिस्टेंस आगे जाओ। r डिस्टेंस आगे जाने के बाद इफ यू वांट टू राइट पोटेंशियल, सिंपली आप क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r में आप वहां पे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर बेटा? समझा ये पॉइंट? नाइस है। इज इट क्लियर? Yes. ओके, चलो क्वेश्चन एक करते हैं इसी के बेसिस पे। मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज मैंने दे दिया +4 कूलम का, यहाँ पे डिस्टेंस d है, और ये सॉरी यहाँ पे चार्ज मैंने दे दिया +4 Q कूलम का, और यहाँ चार्ज दे दिया मैंने -Q कूलम का। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि लोकेट द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल विल बी 0। फाइंड पॉइंट, find distance of point, sorry, find distance of point from +4 Q coulomb charge where electric potential करिए। करें सॉल्व इसको। देखो, मान लो यहां से x डिस्टेंस आगे कोई एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। सो वी आर एज्यूमिंग कि यहाँ से x डिस्टेंस आगे कोई एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट का पोटेंशियल D है। अब मुझे एक बात बताओ ऋषय, कि अगर आप यहाँ से x डिस्टेंस आगे जा रहे हो, मतलब अगर ये डिस्टेंस x है, सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? ये कितना हो जाएगा? d minus x। d minus x। सुपर। सो ये +4Q की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा पॉइंट P पे? विल इट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बाय x, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x। सो ये इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बाय x, एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q बाय d माइनस ऑफ x,
एंड एज इट इज गिवन हियर कि पोटेंशियल एट पॉइंट P is 0, अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 अगर आप प्लेस कर दोगे, सो 1/4 pi epsilon naught 4q by x minus 1/4 pi epsilon naught q by d minus of x. So अगर हम मूव करेंगे इसको, so 1/4 pi epsilon naught 4q by x is equal to 1/4 pi epsilon naught q by d minus of x. So 1/4 pi epsilon naught कैंसिल हो गया, ये q से q कैंसिल हो जाएगा, शिफ्ट कर दो इस साइड में. So 4 into d minus of x is equal to 4d minus of 4x is equal to x. This will come this side. So 4d is equal to what? 5x. x कितना हो जाएगा बेटा? Will it be equal to 4d by 5? So at a distance x from here, which is 4d by 5, my electrostatic potential will be 0. Naisa, got the calculation? गॉट द कैलकुलेशन? समझ में कैलकुलेशन कैसे किया हमने? आप यहां से अगर आप डिस्टेंस x ले रहे हो तो ये डिस्टेंस d माइनस x होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल लिखिए 1/4 pi epsilon naught 4q by x. इसकी वजह से पोटेंशियल लिखिए 1/4 pi epsilon naught minus q by d minus x. और p पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 प्लेस करके सॉल्व करो. So x will be equal to 4d by 5. समझ में आया बेटा? नाइसा, क्लियर है कैलकुलेशन कैसे किया इसको? हाँ सर. ओके. शुभम, कैलकुलेशन क्लियर? प्रॉपर्ली कैसे सॉल्व Yes. किया? ओके. एक और कर. वैसे आपको अंकिता एंड निमय क्लियर है? Yes, sir. ओके. अंकिता, आपको समझा बेटा कैलकुलेशन? ओके. नेक्स्ट करिए. लेट मी मेक अनदर क्वेश्चन. मान लो कि मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ज दे दिया +2q कूलम का, यहाँ पे चार्ज दे दिया -q कूलम का, डिस्टेंस d ले लिया. आपसे पूछ रहा हूं मैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम +2q कूलम वेयर इलेक्ट्रिक potential will be 0. करिए. Okay, correct. I answer. Nimay, sorry, Naisa, have you got the answer, beta? Nimay, both of you. Yeah, sir. Okay. What is the answer? 2d by 3. Okay. शुभम, तुम्हें भी आ गया? No sir. Okay. मैं आपसे ये +2q से पूछ रहा हूँ. So +2q से अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ, let me say this point is P here.
जहां पे आपका पोटेंशियल 0 है, एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम +2 q कूलम। अब मुझे एक बात बता बेटा, अगर यहाँ से ये x डिस्टेंस है, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम हियर? कितना डिस्टेंस हो जाएगा इधर से? बोलो, अगर ये टोटल डिस्टेंस d है एंड इफ इट इज x here, so what will be this distance? कितना होगा शुभम, ये डिस्टेंस कितना होगा? d minus x. करेक्ट, सो दिस डिस्टेंस विल बी d माइनस ऑफ x। अब देखिए, अगर आप पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखोगे, सो इफ ड्यू टू दिस +2 q कूलम चार्ज, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught 2q by x, and because of this if we are writing 1/4 pi epsilon naught minus q by what? d minus of x. So potential at point P we have to take that 0. P point का potential हमें 0 assume करके चलना है। So अगर आप 0 place कर दोगे, so 1/4 pi epsilon naught 2q by x minus of 1/4 pi epsilon naught q by d minus of x. So we'll be shifting them 1/4 pi epsilon naught 2q by x 1/4 pi epsilon naught q by d minus x cancel हो जाएगा, shift कर दो इधर। So 2 into what? d minus of x is equal to x. So if I'll be cross multiplying them, 2d minus 2x is equal to x. So therefore 2d is equal to what? So 2d is equal to 3x. So therefore x will be equal to what? 2d by 3. So यहाँ से जो distance आप लोगे x, this will be simply 2d by 3. Is it okay? Clear है point यहाँ तक? कितना रिशे समझा बेटा कैलकुलेशन? हाँ सर। ओके, ग्रेट, फाइन। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सप्रेस करने, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए हमने दो लॉजिक पढ़ा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? द एनर्जी टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। और फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए? 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 by r। अंकिता समझा बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का? अब बात करेंगे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद ओलंपियाड एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ बेटा। Sir, in the previous question, if they asked if both the charges were positive and we had to find the point at which the potential will be 0, then how will we do that? No, then we'll not have the point where the potential is 0. If this charge and this charge both are positive, so in that case you will not get any point in the space where the potential will be 0. So in that case all the points will have positive potential. Is it clear? Nice, समझ में आया? The potential can be 0 only when one charge is plus and the second charge is minus. If both the charges are plus and if both the charges are minus, then in that case you are not going to get any point where there will be no potential. आपको हर पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेगा। If the charges are positive, so potential will be positive. If the charges are negative, so potential will be negative. Is it clear, Naisa? So why is that so? Oh, yes, good question. Now you see why it is so. Let me have this plus charge beta, plus q, and this is also plus q. Now we are bringing a charge from anywhere to some point. अब अगर आप प्लस चार्ज को कहीं से भी लेकर यहाँ पे आओगे तो ये भी इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। सो ये इसका भी वर्क डन नेगेटिव होगा और इसका भी वर्क डन नेगेटिव होगा, राइट? सो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा और इसका भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये चार्ज को कहीं से भी लेकर आ रहा हूँ तो ये भी नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, ये भी नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, इसका भी पोटेंशियल प्लस, इसका भी पोटेंशियल प्लस, तो क्या इन दोनों को क्यूमुलेटिव ऐड करने के बाद कभी माइनस हो सकता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि एक की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा और सेम अमाउंट में दूसरे की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, तभी आप दोनों को ऐड करोगे तो नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगा ना बेटा? हाँ सर। Now you see if it is plus and it is also, this is also plus, अगर ये दोनों चार्ज प्लस है और अगर आप थर्ड चार्ज को लेकर आ रहे हो, मान लो प्लस को ही लेकर आ रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, ये भी नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। तो क्या इस केस में कभी भी ऐड करने के बाद टोटल पोटेंशियल नेगेटिव होना पॉसिबल है इन दिस केस? नाइस, इज इट पॉसिबल? No. No. Now you see,
मैं आपको दूसरे लॉजिक से समझाता हूँ। अगर आप मुझे बता दो इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मान लो अगर हम नेगेटिव चार्ज को लेकर आते हैं, ये भी तो लेके आ सकते हैं। अगर आप नेगेटिव को लेकर आओगे तो ये इसका भी वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका भी वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। सो इसका भी वर्क डन पॉजिटिव, इसका भी वर्क डन पॉजिटिव। हियर आल्सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव एंड हियर आल्सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। अब मुझे बताइए इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या कभी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव जीरो होना पॉसिबल है? इन दोनों के केस में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना पॉसिबल है? नहीं सर, यस और नो, इज इट पॉसिबल टू? नो। लेकिन आप यही सोचो बेटा, अगर एक चार्ज प्लस होता और दूसरा चार्ज माइनस होता और मैं थर्ड चार्ज को लेकर आता, तो देखिए इसकी वजह से वर्क डन, मान लो प्लस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव हो जाता, और इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाता। इसको लेकर आ रहा हो तो इसकी वजह से वर्क डन पॉजिटिव हो जाता, और अगर वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाता। अब देखिए here we are having positive potential energy and here we are having negative potential energy, तो क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना पॉसिबल है? Yes, sir. Okay, so you tell me one thing, if we are having both the charges of same nature, plus plus या minus minus, is it possible to have potential energy zero in the nearby space? No. नहीं ना। हाँ, ये जीरो कब होगा, when one charge is plus and the next charge is minus, तब लेकर आओगे तो एक की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, दूसरी की वजह से नेगेटिव होगा, एंड देयरफॉर उसको ऐड करने के बाद यू कैन गेट जीरो पोटेंशियल एनर्जी। जब दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर का होगा, अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का होगा, बोथ प्लस बोथ माइनस, इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव जीरो पोटेंशियल। समझा बेटा? ऐसा क्लियर है पॉइंट ये? Yes, sir. ओके ग्रेट। समझा अंकिता, रिसेश समझा, एवरीवन इज इट क्लियर? हाँ सर। सो गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा आपके लिए टफ है आई नो, बट तुम्हें सीखना है। नहीं आएगा मुझे दोबारा पूछो, रिकॉर्डिंग देखो फिर पूछो, बट मेक दिस वेरी वेरी क्लियर। मान लीजिए एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, मैं आपको गॉस लॉ तक ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग अगले हायर क्लासेस में देखेंगे। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू कूलम का है, हियर वी आर हैविंग प्लस क्यू कूलम, here we are having plus q coulomb and here also we are having plus q coulomb, it's a square of side a। आपसे पूछ रहा है, अच्छा ऐसे करो, एक ये प्लस ये चार्ज माइनस प्लस, और हाँ ये ऐसे है अरेंजमेंट। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ये वाला पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। करिए। करेक्ट डिस्कस इसको। अच्छा मुझे बताओ बेटा, ये अगर ए है और ये है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, विल दिस कंप्लीट बी √2a? अगर आपका ये डिस्टेंस ए है और ये भी ए है तो ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना होगा, विल इट बी इक्वल टू √2a? तो ये हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
will it be equal to root 2 a by 2? अगर आप कैंसिल कर दोगे, so will this distance be equal to a by root 2? हाँ ना, ऐसे ऐसा होगा बेटा, a by root 2 ये डिस्टेंस। हाँ सर। हाँ देखो, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल यूज कर रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस होगा रूट 2a, और ये रूट 2a का हाफ है, सो रूट 2a by 2 मतलब a by root 2 विल बी दिस डिस्टेंस। अब लिखिए पोटेंशियल एक एक की वजह से, तो पहले ये चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखता हूँ। सबका डिस्टेंस वही होगा, a by root 2, a by root 2, a by root 2। सो अगर आप पोटेंशियल एट पॉइंट p लिखोगे 1/4 pi epsilon naught, इसकी वजह से q डिवाइडेड बाय a by root 2 ड्यू टू दिस चार्ज। सेम इसकी वजह से लिखिए प्लस 1/4 pi epsilon naught माइनस q बाय a by root 2 बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। फिर इसकी वजह से लिखिए प्लस 1/4 pi epsilon naught q बाय a by root 2 बिकॉज ऑफ दिस। फिर इसकी वजह से लिखिए प्लस 1/4 pi epsilon naught q डिवाइडेड बाय a by root 2। तो ये चार्ज की वजह से भी हो गया, इसकी वजह से, सारे चार्जेस की वजह से हो गया। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पे अब देखो, ये प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 2 into 1/4 pi epsilon naught q divided by a by root 2, this will shift up, so potential at point p हो गया 2 root 2 into 1/4 pi epsilon naught q by a। Is it clear बेटा? आया था आंसर? आ गया था सभी का आंसर? शुभम, ऋषि आया था बेटा आपका आंसर? हैव यू गॉट दिस? Yeah, sir. Okay, great. Ankita, Naisha, have you got the answer? Yes. Okay, great. ठीक है, एक और करिए, लास्ट विल डू अगेन। Sir, can you show the previous slide for me? Yeah. So you have school क्या on Monday, Tuesday and Wednesday? Sorry, Monday नहीं, Tuesday, Wednesday and Thursday. Do you have schools? Yeah. Okay. Yes. Done. चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, करते हैं लास्ट। I will make very simple question based on this one. मान लो कि एक ट्रायंगल हमने फॉर्म किया, and so we are having a triangle here. ऐसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, and let's say that this is my equilateral triangle. Equilateral triangle है. So here we are having a charge of plus q coulomb. Here we are having another charge of plus q coulomb, and the side is A. So ये आपका point P है। आपसे पूछा गया find potential at point P. Find potential at point P. करिए। आगे आंसर, have you got this? नाइस सर, आया आंसर बेटा पोटेंशियल पॉइंट पी पे? Yes, sir. वाह, कितना होगा? सो दिस इज माय पॉइंट पी, वी हैव टू राइट पोटेंशियल। व्हाट इज द आंसर बेटा? नाइस सर, कितना आंसर है? 1/4 pi epsilon naught into 2q by. करेक्ट। अच्छा, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? नाइस सर, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है?
Sir, can you repeat? व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट क्या है? Epsilon, The permittivity of free space. superb. And what is it value? Permittivity of free space का value क्या होता है? 8.85 into 10 raised to 12. Minus 12. Excellent. And how this permittivity of free space related with the speed of light? हाँ, Naisa, how this permittivity of, हाँ, बोलो. Yeah, I forgot. Remember this. Anyone रिसे पता है बेटा how this permittivity of free space is related with speed of light? रिसे आपको याद है कैसे क्या रिलेशन बताया था मैंने permittivity? हाँ, याद रखो बेटा, रिवाइज करते रहो. I know your exam was there, but अंकिता आपको याद है बेटा कैसे क्या रिलेशन किया था? Yes. C was under root mu naught into epsilon naught. C is the speed of light 1 by mu naught. Mu naught was called permeability of free space. This is permeability of free space. और ये जो टर्म है epsilon naught इसको बोलते हैं हम permittivity of free space. इसका वैल्यू लिखोगे mu naught का वैल्यू होता है 4 pi into 10 raised to power minus 7 और epsilon naught का वैल्यू होता है 8.85 into 10 raised to power minus 2. So this is the relation actually. So I expect you कि आप ये ध्यान रखोगे ये relation. You'll remember this, right? अच्छा, अब potential लिखेंगे हम point P पे. So point P पे potential कितना हो जाएगा बेटा? Because of this charge we'll write. So what it will be 1 by 4 pi epsilon naught q by a because of this charge. इसकी वजह से लिखा गया, दोनों प्लस ही था. So again it will be 1 by 4 pi epsilon naught q by a. So अगर हम ऐड कर देंगे, so this will be 1 by 4 pi epsilon naught 2q by a. So this is k actually here. So potential will be k into 2q by a. This will be potential. Is it clear? So what is the difference between permeability and permittivity? Yes. Permittivity is the property of electric field. जो भी हम पढ़ रहे हैं, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रॉपर्टी होता है दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी. सो मैग्नेटिक फील्ड में परमिएबिलिटी आएगा विच इज म्यू नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी आएगा विच इज एप्सिलॉन नॉट, है ना. और वो आपके मतलब म्यू नॉट जो टर्म होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और एप्सिलॉन नॉट जो टर्म है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा. इज इट क्लियर नाइसा? Yes, sir. आगे चल के हम पढ़ेंगे बायट-सेवर्ट्स लॉ. मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा आपकी इस कोर्स में, दैट इज बायट-सेवर्ट्स लॉ. उसमें आपको ये म्यू नॉट के बारे में बताऊंगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. इज इट क्लियर बेटा? शुभम, अंकिता, नाइसा एंड रिसे, नहीं मैं सबको समझा आज का लेक्चर ढंग से? Yes. ओके. एक्चुअली इट इज रेनिंग वेरी हेवीली इन माय एंड, सो इसलिए मैंने लेट स्टार्ट किया. अगले टाइम या उसके बाद वाले टाइम में विल मैनेज दिस टाइमिंग. Is it clear, everyone? सबको समझा? sir. सबको समझा आज का लेक्चर ढंग से बेटा? नाइसा, समझा आज का लेक्चर ढंग से? Yes. We'll wind up for today बेटा. We'll discuss in the coming lecture. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye. Yes, sir. Thank you, sir. Bye बेटा.